Class 11th Legal Studies students, welcome to your first class where we will cover each and every part of your syllabus under this video. In this video, we will cover unit number 1, each and every topic, each and every subtopic as per your syllabus. Now, your unit number 1 is divided into 3 major parts. We will start with the definition of state and we'll see what state is. Now, if I talk a little bit about state definition has been included in your constitution's article number 12. Now, the Constitution of India under article number 12, chapter number 3, part 3, I would say part 3, that is your fundamental rights. Your definition of state has been given. Moving ahead, after we complete our concept of state, we will go to the forms of government. India being the democracy, we will see democracy, we will see dictatorship, we will see monarch, we will see each and everything. Moving ahead, after we complete forms of government, we will move to separation of powers. In that separation of powers also, we will see how these powers are divided among 3 different situations and also from where it was introduced. We will see couple of countries also. We will also see Montesquieu doctrine in this. Each and everything which is important, it will be covered in this video. And for your notes also, you can download my notes, that this PPT, you can download this PPT from the description box link. You just have to download your ADA 247 app, and by the link given in this particular description box, you will be able to download the PPT so that your notes are covered. Also, if you need any guidance or if you are an aspirant who is going to give CLAT paper or any other law entrance paper and you need any guidance or you wish to pursue your career in a law field, you can also contact me by filling up the Google form given in the description box, and we can connect and we can see that yes, would you like to pursue your law as a career. Me being advocate, I usually tell my students that if you are somewhere in between to decide whether law should be a career you need to follow, so you can talk with me. Now, without wasting any further time, we will move to our class today, and this whole video is enough to cover your 15 marks in your final paper. And also, if you are giving your half yearly papers, this video is enough because it is in a detailed way. Moving ahead, if I talk about the very first thing, that is your chapter number 1, it is your concept of state. I already told you your definition of state has been defined in the Constitution of India, article 12. You can also read article number 12 plainly. I have included each and every thing in this. Moving ahead, if I talk about state, what is a state? See, I always tell people to think state as a permanent political organization. It is a place, it has a power to make and enforce law over a specific period, over a specific group of people living in the specific area. For that period, for that group of people, it is not just a government, it is an entire political structure of the country. Now, during your 11th paper, if you write definition of a particular author or a person who has studied in it, it gives you an extra edge. It gives you much more marks because your paper looks ethical, identical, that yes, your examiner will think that person has really studied it. I have put a definition of state by Aristotle that defined the state as a union of families and villages having for its end a perfect and self-sufficient life. In modern terms, it is a community of persons occupying a definite territory, independent of external control and possessing an organized government. I would like you all to look at your particular state. See, I am from Rajasthan. My city is Udaipur. So, we are governed by a particular political party. The state is being ruled by a party and the central is ruled by another party, but all the decision, जितनी भी चीजें हैं, अगर हमारे यहाँ पे कोई योजना बन रही है, अगर हमारे यहाँ पे कोई डिसीजन
ले रहे हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि स्टेट को आप हमेशा एक परमानेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से देखो जिसके पास पावर है, ताकि वो लॉस तो एनफोर्स कर ही सके, और किसके ऊपर कर सके, तो एक स्पेसिफिक पीपल जो उस पूरे के पूरे एरिया में रह रहे हैं उनके ऊपर कर सके। थोड़ा सा आगे अगर अपन बढ़ जावे तो 4 एलिमेंट होते हैं आपके स्टेट के। फॉर एन एंटिटी टू बी कॉल्ड एज स्टेट इट मस्ट हैव दीज 4 इंडिकेटर्स। सबसे पहली बात सर, स्टेट है, आपने बोला स्पेसिफिक एरिया के लोग कवर होंगे, मतलब पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो कोई भी स्टेट बिना पॉपुलेशन के हो नहीं सकता। अब सर स्पेसिफाइड एरिया आपने बोला था, मतलब जियोग्राफिकल एरिया जो है, वो जो बाउंड्रीज है वो फिक्स्ड होनी चाहिए। उसके बाद सर उसको पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या उसको जो कैरी कर रहा है, जो वो स्टेट को गवर्न करेगा, उसकी गवर्नमेंट तो चाहिए ही चाहिए। साथ ही सर प्रीएम्बल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब हमारे को वहां पे सोवरेनिटी चाहिए। The supreme power to make decision without outside interference. This is what distinguish a state from a colony or a province. अब आपके पास ये पावर दी रखी है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन यू द पावर कि आप डिसीजन ले सकते हो बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के, ताकि आप उस पर्टिकुलर एरिया, स्पेसिफाइड एरिया और उसकी जनता मतलब पॉपुलेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर सके। ठीक है, मूविंग अहेड, emergency of state from society. तो society is the collection of people with shared interest, culture, religion, social bonds. Over time, a society became a complex and conflict arose. People needed a formal system to maintain order. The state emerged. तो पहले क्या चलता था, पहले सोसाइटी चलती थी, बहुत सारे कलेक्शन ऑफ पीपल थे, उन लोगों ने अपने इंटरेस्ट जो है शेयर किए, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो सोसाइटीज थी ये बहुत कॉम्प्लेक्स होने लग गई, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अरोज होने लग गए। इसलिए हम लोगों को एक फॉर्मल सिस्टम चाहिए था, और तब ही आपका स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, एमर्ज हुआ। द स्टेट एमर्ज एज अ फॉर्मल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड लॉ। ये चीज आप लोगों की यहां से डेवलप हुई जब सोसाइटी जो थी और उसके काम बिगड़ने लगे, तो यही एक चीज, यही एक रास्ता मिला कि आप स्टेट को एज एन चीज रख दो और उस स्टेट को इमर्ज करो, ताकि एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बन जावे, और उस स्ट्रक्चर से क्या हो, एक सिक्योरिटी, एक लॉ, एक इजी फ्लो मेंटेन करके चले। अब ओरिजिन ऑफ स्टेट्स के क्वेश्चन आपका जो थ्योरी वाला पार्ट है उसमें बहुत पूछते हैं। एक आपके पास है डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, ये सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है कि गॉड क्रिएटेड द स्टेट, द किंग इज द गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव। मतलब क्या हुआ कि आपके पास क्या है, ये थ्योरी जो डिवाइन ओरिजिन थ्योरी है ये क्लेम करती थी कि भाई जो गॉड है उसने वो स्टेट बनाया, कि गॉड क्रिएटेड द स्टेट एंड द किंग, जो किंग है वो उस गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है। दूसरा आपके पास है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो आपके एग्जाम में कभी कभी डिटेल्ड वे में भी पूछ लेते हैं। बहुत सारे फिलोसोफर्स ने इसके ऊपर बहुत सारी टिप्पणी करी है, मैंने आपको 3-4 नाम भी दे दिए हैं, अगर आप लोग लिखते हो तो अच्छा लगता है, उनको आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आर्ग्यूड दैट पीपल लिव्ड इन अ स्टेट ऑफ नेचर एंड एग्रीड टू फॉर्म अ स्टेट थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। मैंने बोला था ऊपर भी आपको कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट अरोज हो रहे थे, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, इन कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा इजी वे में, ताकि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, सबकी लाइफ एकदम स्मूथली चले, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ये स्टेट एज अ पिक्चर यूज करी कि यस ये स्टेट अगर पिक्चर में आ जाएगा, ये स्टेट एज एन ऑप्शन आ जाएगा, तो सब चीजें इजी फ्लो में हो जाएगी। और फिर है आपके पास इवोल्यूशनरी थ्योरी, द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। इट सजेस्ट दैट द स्टेट वाजंट क्रिएटेड एट वन पॉइंट बट इवॉल्व ग्रेजुअली। तभी अपन ने ऊपर भी ये चीज देखी कि स्टार्टिंग में सब कुछ सही चल रहा था, सब लोग शेयर्ड इंटरेस्ट से पढ़ रहे थे, पर इवोल्यूशन हुआ, ग्रेजुअली
इवॉल्व हो रहे थे लोग, और थ्रू किंगशिप से स्टार्टिंग में किंगशिप चलती थी, तो थ्रू किंगशिप से आप लोगों को एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नेसेसरी चाहिए होगी. सी आई एम फ्रॉम उदयपुर राजस्थान, और उदयपुर में टिल नाउ वी हैव आवर किंग. ठीक है, अब ही डोंट हैव एनी पावर्स बिकॉज हमारे पास भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो रन करती है, बट दिस इज व्हाट आई हैव टू टेल यू कि यस दे वर द ओनली पीपल हु यूज्ड टू टेक द डिसीजन. पर अब वो काम नहीं चल रहा था, एंड ईच एंड एवरीबडी रियलाइज कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू नीड अ इवोल्यूशन, यू नीड to gradually evolve according to the time, and that was when the किंगशिप के थ्रू किंगशिप रिलीजन एंड पॉलिटिकलिटी इज नेसेसिटी. तो आप लोग इवोल्यूशन थ्योरी में ये लिखोगे. वापस से मैंने जो आप लोगों को बोला था कि भाई द स्टेट इज डिफाइंड इन आर्टिकल नंबर 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और बहुत छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है, पर उसका जो मतलब है वो बहुत ब्रॉड है. आगे जाके जब आप आपके लॉ स्कूल्स में जाओगे और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो आप लोगों को पता पड़ जाएगा. द स्टेट स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इट इंक्लूड्स क्या क्या. ये जो स्टेट है वो फंडामेंटल राइट्स अपन की स्टार्ट होती है चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 3 से. तो पार्ट 3 की जो फर्स्ट डेफिनेशन है इज योर आर्टिकल नंबर 12. Moving ahead, the government and parliament of India, the government and legislature of each state, फिर आपकी लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज, ये आपकी डेफिनेशन में दे रखी है. वी नो कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, पार्लियामेंट स्टेट में इंक्लूडेड है, सारी की सारी गवर्नमेंट, सारी की सारी लेजिस्लेटिव पार्टीज जो हैं स्टेट की, वो लोकल अथॉरिटी आपकी म्युनिसिपैलिटी हो गई, आपकी पंचायत हो गई, और भी कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है जो गवर्नड होती है, उसको हमने स्टेट में रख दिया. अब व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इज tells the citizen who they can sue if अगर उनकी कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो गई है तो वो किसके ऊपर केस कर सकते हैं. इसलिए ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट्स व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन योर टॉपिक एज वेल. मूविंग, अगर मैं थोड़ी सी ब्रॉडर डेफिनेशन या ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट की बात करूं तो सारे के सारे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव हो या जुडिशरी हो, ये सब के सब इसके अंदर इंक्लूडेड हैं. साथ ही साथ चाहे आपका यूनियन हो, स्टेट हो, लोकल बॉडीज हो, वो भी इसके अंदर है. और इट इज यूज टू डिटरमाइन द एप्लीकेबिलिटी की फंडामेंटल राइट जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी है पार्ट 3 के अंदर, उसको डिटरमाइन करने के लिए कि हां वो एप्लीकेबल हो रही है कि नहीं हो रही है आपके पास. और अगर नहीं हो रही है तो आप किससे सवाल पूछोगे, किसको कटघरे में खड़ा करोगे उस चीज के. और द ब्रॉड डेफिनेशन एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम आर्बिट्ररी एक्शन बाय द गवर्नमेंट बॉडी. एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं. कोई गवर्नमेंट अफसर है, ठीक है, आपकी कोई चीज है जो आपको उससे लेनी है, पर वो आपको कह रहा है कि भाई मेरे को रिश्वत. तो अब इट इज योर फंडामेंटल राइट टू गेट व्हाट इज योर. नाउ इफ यू हैव टू पे फॉर इट, तो भाई बात तो गलत हो रही. तो आप कहां जाओगे, तो आप उस पर्टिकुलर जिस ऑफिस से आपको वो चीज लेनी थी तो उसके हेड पे जाओगे. अब वो गवर्नमेंट ऑफिस है तो आप उस पर्टिकुलर चीज को उस कोर्ट में रखोगे कि हाँ इसका ये जो एम्प्लॉय है वो मेरे से ये चीज पूछ रहा है, ये चीज मांग रहा है, इतनी रिश्वत मेरे से मांग रहा है, तो आप उनको क्वेश्चंस कर सकते हैं. थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं तो गवर्नमेंट इज द मशीनरी और एपरेटस थ्रू विच द स्टेट एक्सरसाइजेस पावर्स. ऑब्वियसली ये एक मैकेनिज्म है फॉर इंप्लीमेंटिंग द विल ऑफ द स्टेट. गवर्नमेंट क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक एजेंसी है स्टेट की. टेम्परेरी चेंजेस टाइम टू टाइम वो करती रहती है. अब जो स्टेट है वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा, पर जैसे ही इलेक्शन होते रहते हैं तो वहां पे दूसरी सरकारें बनती रहती है. कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, अकॉर्डिंग टू द पीपल, बिकॉज वी आर इन अ डेमोक्रेसी. वी इलेक्ट दैट रिप्रेजेंटेटिव. ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट और हम ही उसको इलेक्ट करते हैं ताकि आने वाले 5 साल के लिए वो हमारे हित में काम करें. मूविंग अहेड,
फंक्शन क्या है कि वो लॉज और पॉलिसीज बनाएंगे, उनको इंप्लीमेंट करेंगे, मेंटेन करेंगे, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, सिटीजन्स की राइट को प्रोटेक्ट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे हमारे स्टेट को इंटरनेशनली। अगर कोई गलत चीज हो रही है तो पुराने किसी लॉ में अमेंड करके लेके आएंगे कि नहीं, हमारे स्टेट में कोई प्रथा चली आ रही है, ये ह्यूमन राइट्स के वायलेशन में है, या ये किसी वुमेन या मैन के अगेंस्ट है, तो वो चीज भी किसी पर्टिकुलर कास्ट के अगेंस्ट है, तो ऐसे लॉ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी गवर्नमेंट का ये फंक्शन है कि उसको रिकॉग्नाइज करें कि ये चीज गलत हो रही है और इस गलत चीज को हमको सही करना है। चोरी चकारी बढ़ रही है, मारपीट बढ़ रही है, डाकू घूम रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स, जितना भी रॉन्ग डूइंग अगर एक पर्टिकुलर स्टेट में चल रहा है तो ये गवर्नमेंट का काम है कि वो उस रॉन्ग डूइंग को कम कर सके। ठीक है, मूविंग अहेड, द स्टेट इवॉल्व ग्रेजुअली फ्रॉम द प्रिमिटिव सोसाइटीज। अर्ली फॉर्म क्या था? फैमिली थी, फिर एक क्लैन बनता था, ट्राइब, विलेज, सिटी, स्टेट, और मॉडर्न स्टेट पे अपन आगे हैं। एज सोसाइटी बिकेम्स मोर कॉम्प्लेक्स, स्टार्टिंग से ही मैंने आप लोगों को ये चीज बताई, क्योंकि बहुत चीजें बिगड़ रही थी, कॉम्प्लेक्सिटी हो रही थी, तो हम लोगों को एक ऑर्गेनाइज स्टेट चाहिए था और स्टेट इमर्ज हुआ ताकि ऑर्डर, सिक्योरिटी, लॉ ये सब चल सके। डिफरेंट थ्योरीज एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई द स्टेट इमर्ज, तो मैंने आपको 3 थ्योरी भी यहां पे बता दी थी। क्या की फैक्टर्स है इमरजेंस ऑफ स्टेट में? तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स, नीड फॉर कलेक्टिव सिक्योरिटी, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, क्लासेस और सोशल डिविएशन के बीच में फॉर्मेशन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो सके, सबको जस्टिस मिल सके, डेवलपमेंट हो सके, पर्टिकुलर इंसान का भी, उस स्टेट का भी, कॉमर्स और ट्रेड बढ़ सके, ताकि सब की सब चीजें एक इजी फ्लो में और एक रैपिड ग्रो में बढ़ती रहे। थोड़ा सा आगे और चल जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू वेरियस स्कॉलर्स, द रीजन बिहाइंड आई हैव इंक्लूडेड दिस स्लाइड इज बिकॉज व्हेन यू राइट योर आंसर्स बाय कोटिंग दीज पर्टिकुलर स्कॉलर्स, तो आप लोगों का जो मार्क्स है वो मार्क्स आपको ज्यादा मिलते हैं। मैंने आप लोगों को GWF हेजल की भी एक डेफिनेशन रख रखी है कि द स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड्स थ्रू द वर्ल्ड। जॉन ऑस्टिन की है द स्टेट इज अ सवेनियर बॉडी। जीन जेकस रुसे की है कि भाई अ स्टेट इज अ मॉरल एंड कलेक्टिव बॉडी। और कार्ल मैरिक्स की है द स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन। ये सारी की सारी चीजें पढ़ने की है, कोट करने की है, ताकि आपका जो पेपर के अंदर जो आपकी आंसर राइटिंग है वो आंसर राइटिंग अच्छी हो सके। मूविंग अहेड, मॉडर्न डेफिनेशन की अगर बात करूं तो एक स्टेट क्या है? एक पॉलिटिकल यूनिट है। किसका है? पीपल का है। कहां से गवर्न होता है? एक ऑर्गेनाइज कहां से होता है? एक गवर्नमेंट से। ऑक्यूपाई करता है एक डेफिनेशन, टेरिटरी, डेफिनेट टेरिटरी ऑक्यूपाई करता है, और एक सोवर्जियन और इंडिपेंडेंस से वो चीज चलती है। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि भाई पॉपुलेशन होनी चाहिए, पॉपुलेशन होगी तो एक स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए, तो आपकी टेरिटरी डिफाइंड हो जाएगी, एक गवर्नमेंट, एक ऑथोरिटी उसके अंदर आ जाती है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर सोवरेनिटी। एंड ये चीज जो इट इज इन योर बेसिक स्ट्रक्चर, आपको फंडामेंटल चीज अगर कॉन्स्टिट्यूशन की जाननी होगी, प्रीएम्बल आप पढ़ोगे तो आपको वहां पे 5 वर्ड्स दिखेंगे, एंड वन ऑफ द वर्ड इज योर सोवरेनिटी। मूविंग अहेड, अगर मैं ऑर्गन्स की बात कर लूं और उनके प्राइमरी फंक्शन की बात कर लूं, तो हम लोगों ने देखा है भाई लॉ मेकिंग पावर किसके पास होती है? लेजिस्लेटिव के पास होती है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? इंप्लीमेंट करता है। जुडिशरी क्या करती है? उसको इंटरप्रिटेट करती है। लेजिस्लेटिव कौन होता है? जितने भी पार्लियामेंट के अंदर आपके लोग बैठे हुए हैं। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? ये जो आपके IPS IAS ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं वो। और जुडिशरी क्या होती है? आपकी बार एंड बेंच होती है, जो ये सारे के सारे लॉ को इंटरप्रेट करती है, लोगों को बताती है। ठीक है, डिस्कस बिल, पासिस बजट एंड रिफ्लेक्ट्स द पब्लिक ओपिनियन। आप जिन MP MLAs को सेलेक्ट करते हो वो राज्यसभा विधानसभा में जाके आपकी आवाज उठाते हैं, एक बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, 2/3 प्लस मेजोरिटी वो बिल पास करती है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट सिग्नेचर करता है, बिल पास हो जाता है। जैसे ही बिल पास होता है तो लोअर लेवल एक नीचे
नीचे लेवल जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज होती है, जो गवर्नमेंट सर्विस ऑफिसर्स होते हैं, जो आईपीएस आईएएस या कोई भी किसी भी ऑर्गन का एक ऑफिसर होते हैं, वो ये रन करते हैं डेली एडमिनिस्ट्रेशन पे, लॉ को मेंटेन, ऑर्डर ये सब करते हैं। और लास्ट में जुडिशरी, अगर आपका कोई डिस्प्यूट है या अगर आपकी कोई चीज है तो ये जुडिशरी होती है, वो डिस्प्यूट सेटल करती है, जिसने लॉ ब्रेक किया है उसको पनिश करती है और आपको आपकी राइट प्रोवाइड करती है। आगे बढ़ जाते हैं, थ्योरीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके मैंने आपके छोटे छोटे पार्ट यहां पे बना दिए हैं। सबसे पहली आपकी डिवाइन राइट थ्योरी के स्टेट क्या था, स्टेट गॉड ने क्रिएट कर दिया था। रूलर्स आर अपॉइंटेड बाय द गॉड, रूलर्स आर अकाउंटेबल टू द गॉड ओनली। और ये क्रिटिसाइज हो गए मॉडर्न टाइम में। हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, अगर कोई राजा कुछ कह देता है तो बस वो चीज मान ली और फिर यही कहते थे कि भगवान आपको दे रहा है, हम गरीबों के सामने कौन बोलेगा, दीज और इमोशनल थिंग्स। और ये चीजें सच थी, ये सब चीजें होती थी कि मन मर्जी का काम चलता था। तो ये मन मर्जी का काम आज के जमाने में नहीं चलने वाला था। दूसरी थी आपकी फोर्स थ्योरी की, स्टेट इमर्ज टू द कॉन्स्ट्रक्ट एंड फोर्स, स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स कॉन्कर्ड वीकर ग्रुप्स और गवर्नमेंट मेंटेन्ड थ्रू फोर्स। ये सारी की सारी चीजें आपकी फोर्स थ्योरी के अंदर आती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके पेपर के अंदर आपको दिखेगी, एक क्वेश्चन आपको इसके ऊपर दिखेगा, वो है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। नाउ द स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द पीपल, people voluntarily surrender natural freedoms, government created to protect the rights of who, that particular people, supported by all these ऑथर्स एंड राइटर्स। और ये एक मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी है मॉडर्न टाइम्स के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लोगों के हित की बात चल रही है, सबको एक तरीके से देखा है। वी हैव ऑलवेज सीन राइट टू इक्वालिटी, कि भाई आप किसी को किसी भी कास्ट, जेंडर या रेस के ऊपर कभी जज नहीं कर सकते, सबके लिए सेम लॉज होंगे, सबको अपनी फ्रीडम चाहिए, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होगा। और स्टेट ये रिजल्ट था कि भाई हाँ, सारे के सारे लोगों ने बोला कि इट इज अ हाई टाइम कि वी शुड फॉर्म अ गवर्नेंस। मूविंग अहेड, क्या इवोल्यूशन हुआ? तो भाई स्टेट ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ। पहले फैमिलीज रूल करती थी। आपने अगर आपको थोड़ा बहुत, सिंस यू आर अ मॉडर्न पीपल, यू लाइक टू रीड एंड नो थिंग, तो पहले के जमाने में क्या होता था, फैमिलीज उस पर्टिकुलर एरिया को रन करती थी। अगर आप बॉस्टन में देखो तो देयर इज अ बिग फैमिली जो फाइनेंशियली बहुत केपेबल थी उस टाइम से, तो उनके नाम चलते थे। फिर क्या हुआ, एक नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी हुई, नो सिंगल बिगिनिंग पॉइंट से स्टार्ट हुआ और मॉडर्न स्कॉलर्स ने इस चीज को बहुत सपोर्ट किया। और लास्ट में क्या चीज हो गई, इवॉल्व हो गया, फैमिली का एक्सपेंशन हो गया, फादर वाज द फर्स्ट रूलर। दीज पर्टिकुलर थिंग्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, पर हाँ यू नीड टू नो कि भाई ये चीजें आप मेंशन कर सकते हो। एलिमेंट्स ऑफ स्टेट हमने पहले ही बात कर ली, आपकी पॉपुलेशन, कि भाई सिटीजन कितने हैं उस स्टेट के अंदर, उसकी साइज क्या है, कॉमन लॉज और अथॉरिटी। अब जैसे आपकी एक्साइज ड्यूटी होती है तो वो हर स्टेट की अलग होती है, इसलिए ये सब चीजें अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर स्टेट डिफाइंड होती है। और टेरिटरी, ज्योग्राफिकल एरिया, वाटर, एयर स्पेस, ये सब चीजें हैं जो अपन को पता है। गवर्नमेंट क्या है, एक मशीनरी है थ्रू विच द स्टेट एक्सरसाइजेस, मेक लॉज, एनफोर्स लॉज, चेंज ओवर टाइम, कोई अमेंडमेंट लाना हो किसी चीज के लिए। और सोवर्निटी की, दैट इज इट इज द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट, एब्सोल्यूट राइट विद इन द टेरिटरी, और इंडिपेंडेंस इन फॉरेन रिलेशन। मूविंग अहेड, आपका प्रेमिनेंट स्टेट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, आपका स्टेट कहीं नहीं जा रहा है। ये जो गवर्नमेंट बॉडी है, ये जो गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी है, वो चेंज हो रही होगी और इंडिविजुअल सिटीजन वहां पे सरवाइव करेगा। कंटिन्यूटी ऑफ पर्पस एंड अथॉरिटी, और ये सारे के सारे 5 एलिमेंट आर एसेंशियल फॉर योर एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेट। तो कभी कभी क्वेश्चन अगर पूछ लेवे कि 5 एसेंशियल एलिमेंट्स, तो ये चीज आप वहां पे लिख लेना। मूविंग अहेड, की रोल ऑफ स्टेट क्या है, तो एक प्रोटेक्टिव रोल है कि भाई वो अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करेगा एक्सटर्नल थ्रेट से। इंटरनल क्राइम या वायलेंस हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा।
जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेट करेगा, रेगुलेटिव रोल भी होता है कि कंडक्ट सारे सिटीजन को, रूल्स एंड रेगुलेशन को एनफोर्स करेगा, साथ ही साथ जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज योर सोशल ऑर्डर, उस सोशल ऑर्डर को भी अच्छे से मेंटेन करके चलेगा। ठीक है, वेलफेयर रोल के हिसाब से बात कर ले तो पब्लिक वेलफेयर की बात होगी, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। तभी तो अपन देखते हैं ना, आजकल आप आजू बाजू देखोगे अपने घर के या अपने स्टेट में तो फ्लाईओवर बन रहे हैं, एक नए हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, छोटे मोटे गांव के लोगों को एक एजुकेशन किसी बड़े स्कूल के साथ एफिलिएट कर देते हैं कि आप इन लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करो। इवन आ कॉन्स्टिट्यूशन से कि भाई देयर इज अ राइट टू एजुकेशन। और लास्ट में आता है इकोनॉमिक गोल, तभी सब्सिडीज मिल रही है, एक अच्छी सी प्रैक्टिस मिल रही है ताकि इकोनॉमिकली भी आप बढ़ सको, वेलफेयर भी हो सके, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो सके, और ये सब क्लब करके आपकी जो रनिंग ऑफ द स्टेट है, एट द एंड ऑफ द डे द पीपल दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनके लिए सब काम आसानी से हो सके और हम ग्रेजुअली धीरे धीरे ऊपर बढ़ते रहें। ठीक है, डेवलपमेंट रोल की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बता दिया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तभी ये फ्लाईओवर बन रहे हैं, तभी कच्ची बस्तियां हटती है और उसकी जगह पक्के मकान बनते हैं, रोड बहुत अच्छे बन रहे हैं, आपके वहां पे नई नई चीजें इंट्रोड्यूस हो रही है ताकि आप लोगों का स्टैंडर्ड साथ साथ दुनिया के साथ साथ आप भी आगे बढ़ते रहें। और लास्ट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज योर कल्चरल रोल, मतलब आपकी जो प्रथाएं चलती आ रही है, जो हेरिटेज हैं, वो सारे के सारे हेरिटेज वहां पे रहे और साथ ही साथ उसको प्रमोट भी करें, एजुकेशन भी देखें, इंस्टीट्यूशन वहां पे रुकें। तो अपन ने देख रखा होगा इन आर नाउ सिंस यू आर इन क्लास 11, तो कभी थर्ड और फोर्थ की क्लास में जाना तो वहां पे आप लोगों को एक चैप्टर मिलेगा जहां पे आप लोगों को राजस्थानी फोक डांस, गुजरात का सॉन्ग कल्चर, काठियावाड़ी कल्चर, पंजाब के सिख कल्चर, ये सारी की सारी चीजें वहां पे बच्चों को बता रखी है ताकि आप आपकी रूट्स को जरूर जानो। ठीक है, तो दिस वाज योर चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के बस अंदर यही था और अपन ने फॉर्म्स और ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट में भी वहां पे देख लिया। अब ऑब्वियस सी चीज है सर, हमने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट देख लिए, 3 थे, तीनों के डिस्टिंक्ट फंक्शन है, तीनों इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। अब अगर इंडिपेंडेंट तो वर्क कर रहे हैं पर साथ ही साथ सर वो इंटरडिपेंडेंट भी है कि अगर ये तीनों जने अगर क्लब करके नहीं चले तो सर क्या होगा, चेक्स और बैलेंसेस नहीं मेंटेन होंगे। सर उसने कुछ गलती कर दी या उसने कुछ आर्बिट्ररी पावर यूज कर ली तो जुडिशरी बैठा हुआ है उसको चेक करने के लिए। सो ईच ऑर्गन्स हैव डिस्टेंस फंक्शन, दे आर इंटरडिपेंडेंट, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस आर देयर बिटवीन योर ऑर्गन्स, और ये जो रिलेशनशिप है वो डिफाइन करती है योर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। Understanding organs is a crucial way to understand the government structure, इसलिए you have been given this topic. So forms of government are classified on who holds the supreme power, how this power is exercised and how the head of the state is chosen. Classification कर दूं तो सबसे पहले क्या होती थी, मोनार्की होती थी, 1 person holds the power। फिर आपके पास क्या हुई, एस्ट्रोक्रेसी आई जहां पे few people hold the power। डिक्टेटरशिप भी आई कि 1% डिक्टेटर होके वहां खड़ा हुआ है। स्टिल वी हैव सम कंट्रीज जहां पे डिक्टेटरशिप चल रही है। और लास्ट में देयर वाज द बिगेस्ट चेंज जो थी डेमोक्रेसी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इट इज द पीपल who hold the power। इसलिए आपके प्रीएम्बल की सबसे पहली लाइन ये कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम लोग वहां पे पावर होल्ड करते हैं, हम लोग इलेक्ट करेंगे, हम लोग रिप्रेजेंटेटिव को रखेंगे और वो हमारे लिए ही वो देश का हित बनाएंगे। Moving ahead, a form of government where a single person is king or queen hold the supreme authority, तो ये आपकी मोनार्की हो गई। ठीक है, हेरिडेटरी पावर होती है, अपन देख रहे हैं किंग्स एंड क्वींस को, अपन वेल्स की बात कर ले हुए, अपन इंग्लैंड की बात कर ले हुए, तो हम देखते हैं को यूजुअली लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ, सिंबॉलिक रोल होता है, मॉडर्न मोनार्की में लिमिटेड भी है। अगर आप यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो आपको ये चीज थोड़ी बहुत पता रहेगी। Constitution monarchy power limited by the constitution, government also includes this minister and parliament। एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखा है, यूके, जापान, स्पेन में मोनार्की आज भी है। एब्सोल्यूट मोनार्की में बात करूं तो अनलिमिटेड पावर हो जाती है उस पर्टिकुलर मोनार्च को,
कोई भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। और ये आपकी सऊदी अरेबिया, अभी जो अपन यूएई बोलते हैं, तभी वहां का किंग बहुत पावरफुल है। ठीक है, मूविंग अहेड, अगर मैं आपको एस्ट्रोक्रेसी की बात करूं तो अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज हेल्ड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। ये वो नोबल लोग, ये वेल्दी लोग, एजुकेटेड लोग यहां पे आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि कुछ लोगों के हाथ में, जो प्रिविलेज पीपल होते हैं, उनके हाथ में पावर होती है। ये पावर उनकी बर्थ राइट होती है, उनकी वेल्थ के ऊपर बेस्ड होती है, उनकी एजुकेशन के ऊपर बेस्ड होती है, और हेरिडिटी ही मान लो। ऑफन हेरिडिटी मैंने यहां पे लिखा हुआ है, पर ये आप हेरिडिटरी ही मान लीजिए। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। फीचर्स क्या है? गवर्नमेंट बाय द बेस्ट क्वालिफाइड। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई पैसे वाला होगा, पढ़ा लिखा होगा, बचपन से उसको उसी एनवायरनमेंट में रखा होगा, तो ये सारी की सारी जो बातें हैं ना कि हाँ अंदर अगर आपको बचपन से चीज देखते आ रहे हो तो आप बेस्ट उसमें परफॉर्म करते हो, तो यस। और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि वॉज द डोमिनेंट फ्रॉम मिडिवल यूरोप इवॉल्व्ड इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, रेयर इन प्योर फॉर्म टुडे। मूविंग अहेड, डिक्टेटरशिप, ये चीज हम आज भी देख रहे हैं, जहां पे एक ही इंसान है जिसके पास अनलिमिटेड अथॉरिटी है, पावर है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कोई लॉ नहीं, सिर्फ पावर ही पावर। अपोजिशन, फ्रीडम का सप्रेशन हो रखा है, फोर्स से, बंदूकों के दम से, डराने के दम से ये सब चीजें चलती है। और एक प्रोपोगेंडा है, एक अगर मैं डिक्टेटरशिप की खुली बात कर लूँ तो वी आर सीइंग इन सऊदी कंट्रीज, जो यूए की ऊपर आप लोगों को कंट्री, अपना ही पड़ोसी आपको मिल जाएगा जहां पे आप लोग डिक्टेटरशिप देख रहे हैं। ठीक है, टाइप ऑफ डिक्टेटरशिप, तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप, जो अपने पड़ोसी की बात मैंने कर दी। पर्सनल डिक्टेटरशिप, किसी इंडिविजुअल को हेल्ड कर दिया। और लास्ट में कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ओवरऑल एक्सपेक्ट होता है, तो वो टेरिटोरियल डिक्टेटरशिप बोलते हैं। एग्जांपल, द बिगेस्ट पर्सन अलाइव, द मोस्ट नोन पर्सन, जर्मनी के एडोल्फ हिटलर, जिसके आपने जिसके बारे में सुना होगा। द मैन बिहाइंड सो मेनी थिंग्स, क्योंकि उसको देख के ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट भी निकला। उनने जो किया, उनको देख के एक दहशत का वो कहते हैं ना कि भाई हाँ, कि अगर डिक्टेटर किसी इंसान से सच में डरना हो आफ्टर ही इज डेड, तो वो एडोल्फ हिटलर ही थे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। वैसे ये आपका पार्ट इतना आता नहीं है, बट यू शुड नो कि भाई स्टेट कंट्रोल ओवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, सिंगल पार्टी सिस्टम होता है, मीडिया एजुकेशन पे कंट्रोल होता है, पुलिस सर्वेलेंस चल रहे होते हैं, अपोजिशन कभी जिंदगी में आ नहीं सकता, और आपकी आइडियोलॉजी जो होती है वो भी बेस्ड होती है। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन योर टोटलिटी। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगर डेमोक्रेसी की बात करो, इंडिया की बात करो, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द पावर इज हेल्ड बाय द पीपल, इट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया जो ये पावर होल्ड करते हैं। गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये चीज भी अपन ने देख रखी है। और क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये तो अपन बचपन से ही जानते हैं कि जो सोवेनिटी होती है, दैट वेस्ट इन द पीपल, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होते हैं, रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, सब चीजें वहां पे आपको मिल जाएगी। टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है कि पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, ये एक एशियंट मॉडल है जो आपको दिखेगा। एक इनडायरेक्ट होती है डेमोक्रेसी, पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, इंडिया, यूके, यूएसए अपना पार्ट है, जहां पे सिटीजन्स के पास राइट टू वोट होता है, और ये मोस्ट कॉमन फॉर्म भी है, और हम लोग ही एक गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं जो हमारे लिए काम कर सके। एसेंशियल फीचर्स अगर अपन देख लें, दिस क्वेश्चन यूजुअली कम्स कि यूनिवर्सल एडल्ट सरफेज, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, कोई धांधलेबाजी नहीं होना चाहिए, कोई वोट चोरी नहीं होनी चाहिए, कोई ईवीएम हैक नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी होगी, सेपरेशन ऑफ पावर होगी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट वर्क करेगी, फ्री प्रेस एंड मीडिया जो यहाँ पे नहीं है, पर फिर भी इट इज अ फीचर, रूल ऑफ लॉ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और आखिरी में आपके जो राइट्स और फ्रीडम है उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 21 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर। ठीक है, तो ये आपकी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की बात थी। अब फंक्शन पे अगर अपन बात कर ले में, तो
तो लेजिस्लेटर का फंक्शन क्या होता है, लॉ मेकिंग बॉडी होती है, लॉ बनाती है, अमेंड करती है, डिस्कस करती है नेशनल इश्यूज को, सारे के सारे गवर्नमेंट के फाइनेंसेस बजट पे उनका कंट्रोल लेता है, स्क्रूटिनी करती है एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को, रिप्रेजेंट करती है पब्लिक के इंटरेस्ट को, तभी हम उनको इलेक्ट करते हैं, तभी हम उनको राज्यसभा विधानसभा में भेजते हैं ताकि वो हमारी बातें वहां रख सकें, कोई बिल इंट्रोड्यूस कर सके हमारे हित में, फिर उसके ऊपर बहस होगी, वो बिल के ऊपर बहस होगी तो फिर लोग उस पर बातें करेंगे, फ्लॉज बताएंगे, आय करेंगे, नो लड़ेंगे, और फिर जाके वो बिल पास होता है जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन कर देता है, 2/3 मेजोरिटी अगर आपके पास होती है। एडिशनल फंक्शन क्या होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट, ये लोग इलेक्ट करते हैं, अगर कुछ इंपीचमेंट कहीं से कोई ऑफिशियल करता है तो उसको रिमूव कर देते हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को भी अप्रूव करते हैं, इमरजेंसी का पार्ट हो, वॉर की बात हो तो ये सब ये लोग डिक्लेयर करेंगे, और टैक्सेशन भी इनका ही काम है। तभी आपको पता है फरवरी में मैडम फाइनेंस मिनिस्टर आती हैं और अपना बजट भी पेश करती है। ठीक है, अपन एक बाइकैमरल करते हैं, मतलब 2 चेंबर्स वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो इनको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, ये लॉस को एनफोर्स करते हैं, लेजिस्लेटर जो चीज पास कर देती है उसका एनफोर्समेंट का जो काम है वो इन्हीं लोगों का है, ये एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट को, ऑफिशियल जजेस ये सब यहीं से अपॉइंट होते हैं, फॉरेन रिलेशन, डिप्लोमेसी, आर्म फोर्सेस का कमांड, ये सारी की सारी चीजें इनके अंदर आती है। मूविंग अहेड, एडिशनल फंक्शन अगर मैं देखूं तो कोई नया लेजिस्लेशन हो, ऑर्डर मेंटेनेंस की बात चल रही हो, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो, कभी पार्डन ग्रांट देना हो, एग्जीक्यूटिव इज योर प्रेसिडेंट, और आपका प्रेसिडेंट ही पार्डन दे सकता है, और इलेक्शन भी कॉल कराते हैं, बजट की प्रिपरेशन बोलते हैं, स्टेट इंटरनेशनली रिप्रेजेंट भी करते हैं। कौन करता है इसको हेड, तो इट इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, फिर आते हैं प्राइम मिनिस्टर, फिर आते हैं हमारे चांसलर ऑफ, डिपेंडिंग ऑन आर सिस्टम, प्राइम मिनिस्टर के नीचे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऐसे ऐसे करके होम मिनिस्टर से पूरी की पूरी हायरार्की चलती रहती है। लास्ट में आ जाती है जुडिशरी, जो लॉज इंटरप्रेट करती है, उनको अप्लाई करती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बना तो दिया फेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतने सालों में उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो अहमियत है वो हमारे जजेस हमारे को समझाते हैं, डिस्प्यूट सेटल कर देती है, क्रिमिनल है, सिविल है, कुछ भी है वो करती है, लोगों की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को प्रोटेक्ट करेगी, कभी कभी लॉस को भी रिव्यू कर देगी जो आर्बिट्ररी है या जो इस पीरियड ऑफ टाइम के लिए गलत हैं, और एग्जीक्यूटिव के एक्शन, अगर वो एग्जीक्यूटिव कोई गलत एक्शन कर लेता है तो ये जुडिशरी होती है जो उसको सवाल या कटघरे में खड़ा कर देती है। एडिशनल फंक्शन की बात करूं तो इशू ऑफ रिट, तभी अपन आर्टिकल नंबर 32 देखते हैं, तभी अपन सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी देखते हैं, जस्टिस को एनफोर्स करेगी, अपील सुनेगी, लोअर कोर्ट की रिव्यू पिटीशन सुनेगी, डिस्प्यूट सेटल करके स्टेट और सिटीजन के बीच में एक हार्मनी एस्टेब्लिश करेगी, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हायरार्किकल सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है, देन वी हैव हाई कोर्ट्स इन ईच एंड एवरी स्टेट, उसके बाद भी हमारे पास प्रिंसिपल बेंच है, फिर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जहां पे डिस्ट्रिक्ट जज बैठता है, उसके नीचे भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बैठेंगे, उनके नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, उसके बाद आपके स्पेशल कोर्ट्स, ये सारी की सारी चीजें एक स्ट्रक्चर्ड वे में चलती है, सुप्रीम कोर्ट बीइंग द टॉप मोस्ट अथॉरिटी, और उसके नीचे ही ये सारे के सारे जो कोर्ट्स हैं वो गवर्न करते हैं। नाउ अब सर हमने देख लिया स्टेट क्या होता है, हमने देख लिया सर ऑर्गन्स क्या हैं, हमने जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, 3 चीजें भी देख ली। अब सर सेपरेशन ऑफ पावर्स, इफ इन योर 15 मार्क्स और इफ आई वुड से आपके हाफ ईयरली के अंदर अगर आपके पास यूनिट नंबर 1 की एक्सेस होगी तो दिस पर्टिकुलर इज योर हॉट टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। सो द प्रिंसिपल दैट द गवर्नमेंट पावर शुड बी डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट ब्रांचेस, ईच ब्रांच हैज डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट रिलेशनशिप। डेफिनेशन की बात करूं तो डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट पावर्स अमंग सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, और पर्पस क्या है कि एक सेंटर्ड पावर किसी के पास नहीं हो, कोई आर्बिटरी है ना यूज नहीं करे उसकी पावर को, सब
सबके पास चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। बेसिक प्रीमिसेस की बात करूं तो पावर टेंड्स टू करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्शन लेके आती है, डिवीजन प्रिवेंट्स अब्यूज, ईच एंड एवरी ब्रांच शुड बी चेक और इंश्योर क्या करती है कि आपकी लिबर्टी एंड फ्रीडम हो, आपको जिस चीज के लिए रख रखा हो उसके लिए आप अकाउंटेबल हो, और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस वहां पे होनी चाहिए। मूविंग अहेड, अगर मैं आपको एक मॉन्टेस्क्यू की सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात कर लो, जो कभी कभी क्वेश्चन में पूछते हैं और नहीं भी पूछे तो आप इनको अगर स्टेट कर देते हो, तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इवैल्यूएशन अपन सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें तो कहां से आया था भाई? आया तो था हमारा ग्रीस और रोम से। एरिस्टोटल था, उसने आइडेंटिफाई करे थे ये तीन फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। जॉन लॉक थे जिन्होंने इसको रीडिफाइन किया 17th सेंचुरी में। मॉन्टेस्क्यू जो थे उसने फॉर्मली इसको रिकॉग्नाइज किया 18th सेंचुरी में, और इस वर्क ऑफ वाज द स्पिरिट ऑफ लॉज, और इसको अगर आपने कोट कर दिया तो आपके 1 मार्क्स यहां से बढ़ गए। हेवीली इन्फ्लुएंस मॉडर्न डेमोक्रेटिक constitutions. Why Montesquieu developed the theory? Reaction to absolute monarchy in the France. ऑब्जर्व किया उन लोगों ने कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, उनको फियर था एक ट्रिनिटी से, एक आर्बिटरी पावर से। उनका बिलीफ था कि लिबर्टी और फ्रीडम होनी चाहिए, और ये चाहते थे कि हाँ एक बैलेंस गवर्नमेंट हमारे पास होनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट क्या था कि गवर्नमेंट पावर शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस। ये सारी की सारी ब्रांचेस जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगी, सबके पास डिस्टिंक्ट फंक्शन होंगे, कोई भी ओवरलैप नहीं होगा। और क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आर्बिट्ररी यूज करेंगे, मतलब अपनी मन मर्जी का काम करेंगे, उनके ऊपर भी चेक्स और बैलेंसेस होने चाहिए। 3 ब्रांचेस वी ऑलरेडी नो, लेजिस्लेटिव जो लॉज बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, और लास्ट में जुडिशली जो इंप्लीमेंट करती है। सारी की सारी ब्रांचेस में डिफरेंट पीपल होते हैं, डिफरेंट फंक्शन होते हैं, और इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की उसके ऊपर भी चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन किया है, को इक्वालिटी ऑफ ब्रांचेस रख रखी है, इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट रख रखा है, अकाउंटेबिलिटी टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, दैट्स व्हाई योर कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, और रिस्पॉन्सिबल टू पीपल होना चाहिए। और द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि चेक्स एंड बैलेंसेस हमेशा वहां पे होंगे। ठीक है, बेसिक फीचर डॉक्ट्राइन की अगर मैं बात कर लूं तो डिस्टिंक्ट पर्सनल, डिफरेंट इंडिविजुअल होल्ड ऑफिस इन each branches, no person can hold the office in more than one branch, prevent करता है concentration of power को, और ensure करता है इंडिपेंडेंसी। अगर एक ही आदमी तीनों में है तो वो ऑब्वियसली गुटबाजी में कुछ ना कुछ होगा। हर एक ब्रांच का अलग एक ड्यूटीज होती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओवरलैप नहीं होती, ताकि क्या लड़ाई भी नहीं हो कि मैं यहां तू क्या या, इसलिए ये सब चीजें वहां पे, और क्लियर डेमोक्रेशन ऑफ पावर्स होती है, इंडिपेंडेंस होती है, सब अपना अपना काम करो, कोई भी किसी को डोमिनेट नहीं कर रहा है, सब इक्वल है, सब अपनी डिसीजन खुद बनाओ, सारे के सारे रिसोर्सेस, सारी के सारी अथॉरिटी है जो आपके पास है, और कोऑपरेशन इज नीडेड, डिस्पाइट इंडिपेंडेंस मस्ट कोऑपरेट for functional government to protect the constitutional system, which is the last thing that we want. System of mutual checks and balances की बात करूं तो सिस्टम ऑफ म्यूचुअल कंट्रोल बिटवीन द ब्रांचेस। पर्पस क्या है कि सारे के सारे जो ब्रांचेस हैं उसमें से किसी एक ब्रांच को ऊपर मत रख दो, कि एक कोई ये नहीं हो कि मैं तो भगवान हूं, तुम सब मेरे बच्चे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेजिस्लेटिव क्या चेक करता है? वो लॉज को रिपील करता है, अमेंड करता है, उनको बनाता है, बजट फाइनेंसेस देखता है, कुछ इंपीचमेंट हो जावे जुडिशली में तो वो वहां पे पुट करके उसको हटा देता है। कभी वॉर सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है, गवर्नमेंट के जो अपॉइंटमेंट्स है ये सब लेजिस्लेटिव करता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जजेस को अपॉइंट करेगा, ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लिखाएगा, और अगर कोई भी ऑफिशियल जो लेजिस्लेटिव किसी ऑफिशियल को लेजिस्लेटिव चाहता है कि भाई इसको हटा दो तो उनको रिमूव भी करेगा। और फॉरेन पॉलिसी का काम भी यही है। और जो आपके जुडिशियल चेक्स है, मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशनल के रिव्यूज, आपके एग्जीक्यूटिव के एक्शन का रिव्यू, ऑर्डर्स और मेंटेनेंस, ये सब आपके जुडिशियल चेक्स में आते हैं। एग्जाम्पल अगर देख ले तो यूएसए में प्रेसिडेंट कैन वोट बिल्स, ठीक है, यूके में प्रेसिडेंट पार्लियामेंट कैन रिमूव पीएम, इंडिया में प्रेसिडेंट सिर्फ एक फिगर हेड है, जो भी पावर है वो पीएम के पास है, जुडिशरी भी हमारे पास है।
एंश्योर क्या करता है कि कोई भी ब्रांच ज्यादा पावरफुल नहीं बन जावे, और भले उनको ब्रांच में इंडिपेंडेंट वर्क करने के लिए दिया है पर उनके पास अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और एट द एंड ऑफ द डे जो राइट और फ्रीडम है अपने लोगों का वो प्रूव होना चाहिए। अब इंपैक्ट क्या हुआ इस डॉक्ट्राइन का, तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन 1787 से मोस्ट फेमस इंप्लीमेंटेशन, फ्रेंच का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आया, बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन आए, नेचर ऑफ गवर्नमेंट चेंज कर दिया, एक एब्सोल्यूट मोनार्की से हम लोग एक गवर्नमेंट पे आ गए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का कंसंट्रेशन यहां पे हमको देखने को मिल गया था। पॉलिटिकल इंपैक्ट की अगर मैं बात करूं तो एक डेमोक्रेसी की नीड थी, एक गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी चाहिए थी, इंडिविजुअल लिबर्टी चाहिए थी, आपको रूल ऑफ लॉ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की भाई जो रूल ऑफ लॉ है उसको एस्टैब्लिश करना था। इससे इंस्टीट्यूशनल इंपैक्ट क्या पड़ा कि आपकी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी आ गई, आपकी स्टैब्लिश लेजिस्लेटर आ गई, और आपको एग्जीक्यूटिव के पावर भी यहां पे मिल गए। अब इवोल्यूशन की बात करें कि कैसे ये चीज बढ़ती गई, तो इवोल्यूशन की बात भी हम सेपरेशन ऑफ पावर्स में करेंगे कि सबसे पहले क्या करता है वो ट्राइनार्की प्रिवेंट करता है कि कोई भी कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं है, डिक्टेटरशिप प्रोटेक्ट करता है, लिमिटेड गवर्नमेंट के पास रखता है, लिबर्टी आपकी प्रोटेक्ट करता है, इंडिविजुअल की राइट सिक्योर करता है मल्टीपल ब्रांचेस में, और कोई भी आर्बिट्ररी पावर, कोई भी मन मर्जी का काम, कोई भी सबसे बड़ा नहीं है, कुछ भी वो नहीं कर सकता है, इस चीज को भी ये प्रिवेंट करता है। अकाउंटेबिलिटी एंश्योर्स करता है कि सारे ब्रांचेस को पावर तो दे दी है पर वो अपना काम सफेदी नहीं, अपना काम बहुत अच्छे से करे, वो अकाउंटेबल हो, उसमें कोई झोल नहीं हो, वो किसी भी पर्टिकुलर इंसान को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे, और अगर उनने कुछ गलत किया है तो अपने एक्शंस के लिए आंसरेबल भी होंगे ऑफिसर्स को, और पब्लिक स्क्रूटनी ऑफ गवर्नमेंट वहां पे प्रमोट होगी। और स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो वो सडन चेंज प्रिवेंट करेंगे, रिवॉल्यूशनरी चेंज हो जाएगी, कंटिन्यूटी एंश्योर करेगी। आगे बढ़ जाते हैं, फैसिलिटेट्स लेजिस्लेशन की डिलिबरेट लॉ मेकिंग पावर होगी, रिव्यूज होंगे, बेटर क्वालिटी ऑफ लॉज होंगे, हेजिटेशन कम होगी, जैसी जैसी मॉडर्न पीरियड ऑफ टाइम के साथ साथ जरूरतें हैं वैसे काम होगी। और लास्ट में वी हैव डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, जहां पे जो पीपल हैं वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं लेजिस्लेटिव की तरफ से, पीपल की सवर्निटी वहां पे आपको इंश्योर करनी है, और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी है उसको ऊपर रखना है। ठीक है, डिफेक्ट्स क्या है कि भाई स्लो मेकिंग डिसीजन पावर है, भाई बिल इंट्रोड्यूस होगा, बहस होगी, बातें होगी, सामने वालों को नहीं समझ में आया तो विरोध करेंगे, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट सिग्नेचर करेगा, फिर एग्जीक्यूटिव उसको डालेगी, बहुत सारे आपके पास डिलेज यहां पे कर सकते हो। पास अगर अर्जेंटली कुछ पास करना है तो वो नहीं कर सकते, ब्यूरोक्रेट्स का डिले है, बाहर से कुछ ऐसा कर लेंगे तो वैसा हो जाएगा, यूं कर लेंगे तो यूं कर लेंगे, तो ये सारे डिफेक्ट्स यहां पे आते हैं। ठीक है, एक डेड लॉक है, ब्रांचेस कैन ब्लॉक ईच अदर, गवर्नमेंट कैन ग्रांट द होल्ड, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है डिसीजन मेकिंग में, कभी जुडिशरी कुछ बोल देती है, कभी गवर्नमेंट कुछ बोल देती है। ओवरलैपिंग पावर, इम्पॉसिबल टू क्रिएट प्योर सेपरेशन, भाई कहीं ना कहीं तो आपको देखे, अब अगर जजेस जुडिशरी को आपने सेपरेट कर रखा है तो उनका इंपीचमेंट लेजिस्लेटिव जुडिशियल पावर कर सकती है। किसी ने, किसी जज ने किसी बड़े पॉलिटिकल आदमी के खिलाफ कुछ बोल दिया तो कुछ ना कुछ वहां पे देख लेते हैं। एक एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर, एक ऑर्डिनेंस की बात चल रही है, अनक्लियर बाउंड्रीज है, डिटरमाइन नहीं कर सकते हम सेपरेशन को, ग्रे एरियाज, डिस्प्यूट बिटवीन द ब्रांचेस हम नहीं दे सकते। पब्लिक के अंदर कंफ्यूजन है कि क्या किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके पास जावें, इसके पास जावें, इसके हेड के पास जावें कि टोटली किसी और के पास है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, एक चीज एक जवाब कोई नहीं देता। और डिफिकल्टी क्या होती है कि सेपरेशन इम्पॉसिबल, कोऑपरेशन रिक्वायर्ड होता है पर फिर भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है, और कोई भी विजिबल पार्लियामेंट सिस्टम यहां पे नहीं है। पार्लियामेंट सिस्टम इशू की अगर मैं बात करूं तो एग्जीक्यूटिव फ्रॉम लेजिस्लेटिव, प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट लीड कर रहा है, कोई सेपरेशन प्रोनाउंस नहीं हो रही है। प्योर कैन नॉट अचीव प्योर सेपरेशन की बात है कि भाई उसने कह दिया तो लोगों को भी पता है, नौकरी बचाने के लिए उसके कहने से चल दो। और एक इमरजेंसी सिचुएशन है कि प्योर सेपरेशन प्रॉब्लमेटिक हो जाती है क्राइसिस के टाइम पे, क्विक एग्जीक्यूटिव एक्शन चाहिए होता है, पर फिर भी फोन करके सर ये हो गया क्या करें, ऐसी परमिशन आप लोगों को लेनी पड़ती है, अप्रूवल डे बाय डे लेना पड़ता है। ठीक है,
थोड़ा सा अगर आगे बात कर लो मॉन्टेस्क्यू की डॉक्ट्राइन की, तो एक ये फ्रेंच फिलोसोफर्स थे, इन्होंने आर्ग्यू किया था कि अगर एक पर्सन है और वो बॉडी होल्ड करता है तीनों की तीनों पावर, आर्ग्यूड दैट इफ वन पर्सन और द बॉडी होल्ड्स ऑल थ्री पावर्स इट लीड्स टू अ ट्राई, मतलब ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स चीज बना देगा। बेसिक फीचर की बात करी थी कि सेम पर्सन जो है वो नहीं होल्ड करने चाहिए, सब ऑर्गन सेपरेट होने चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, एक्सरसाइज करने चाहिए, एक दूसरे की पावर चेक और बैलेंसेस भी हो, कि यूं नहीं हमने अलग अलग इंसान में बांट दिया पर उनको देखने के लिए कोई नहीं होना चाहिए, वो भी देखेंगे। जुडिशरी कैन डिक्लेयर लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटर कैन इम्पीच जजेस, एग्जीक्यूटिव जजेस को अपॉइंट कर सकता है, तो सबको साथ साथ चेक्स एंड बैलेंसेस में मूव होना चाहिए। पार्लियामेंट सिस्टम की उसने बात करी थी कि फ्यूजन होना चाहिए रादर देन सेपरेशन ऑफ पावर, प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट से, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की ओवरलैपिंग, स्ट्रक्चर्ड एक अच्छा सा है कि एक हेड हो, हेडेड बाय गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट में डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस हो और उनके नीचे भी जजेस आए। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं आगे भी चल दूं तो लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो 650 इलेक्टेड मेंबर्स हायरार्की होल्ड करते हैं, एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर अपने यहाँ पे चलते हैं, फिर कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर आते हैं, फिर रेस्ट्रेंट कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट होता है। जुडिशल तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, चीफ जस्टिस परमानेंट नहीं होंगे, बार बार उनके टाइम के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव के डिसीजन को वो रिव्यू कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट में भी यहाँ देख रखा है। और डिग्री ऑफ सेपरेशन की बात करें तो इनकम्प्लीट सेपरेशन है, एग्जीक्यूटिव डिपेंडेंट ऑन लेजिस्लेटर, एंश्योर स्टेबिलिटी थ्रू योर कोऑपरेशन। प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात कर लूं तो प्रेसिडेंशियल इलेक्टेड फ्रॉम कांग्रेस पहले वहां चलती थी, फिर हेड ऑफ द स्टेट हुआ, फिर कांग्रेस का हाउस और सेनेट, ये यूके यूएस की बात चल रही है। और स्ट्रक्चर अगर देखें तो प्रेसिडेंट जो कि एग्जीक्यूटिव, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इंडिया की बात करो, और फिर अपने सुप्रीम कोर्ट और उसके नीचे के कोर्ट्स। लेजिस्लेटिव पावर अगर कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें या XYZ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो 435 मेंबर्स, 2 फ्रॉम ईस्ट स्टेट, पहले ये चलता था सेनेट में। अपने यहाँ पे मैंने यह बात करी, ये आपके पास अभी भी उस टाइम की यूएसए की बात चल रही है, वहाँ पे कांग्रेस होता है, सेनेट होते हैं, 100 मेंबर्स होते हैं, हर 2 स्टेट से होते हैं, लॉज बनाते हैं, बजट्स बनाते हैं, प्रेसिडेंशियल वोट देखते हैं और अपॉइंटमेंट्स। मैं आगे जाके इंडिया की बात करूंगा, डोंट वरी। अभी सेपरेशन ऑफ पावर्स यूएसए में चल रही है कि एग्जीक्यूटिव राइट प्रेसिडेंट है, अपने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की चलती है, वहाँ प्रेसिडेंट की चलती है। लॉज एनफोर्स करना कमांडर ऑफ चीफ होता है, जजेस को अपॉइंट करते हैं, वीटो पावर उनके पास होती है। अगर मैं आपको यूएसए की आगे की भी चीज देखे तो वहाँ पे 9 सुप्रीम कोर्ट है, फेडरल कोर्ट ऑफ सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इंटरप्रेट करता है, किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशन लॉ को स्ट्राइक कर सकता है। एंड योर यूएसए इज गवर्न्ड बाय एडवोकेट्स, एक ही ऐसी जगह है जहां पे एडवोकेट्स ही सब चीजें चलाते हैं। एंड चेक्स एंड बैलेंसेस आप लोगों को यहां पे भी मिल जाएगा। डिग्री ऑफ सेपरेशन यहाँ पे क्लियर और स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, इफेक्टिव चेक्स एंड बैलेंसेस है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है, तभी प्रेसिडेंट वहाँ पे जो हेड होता है ऑफ द स्टेट का। सेपरेशन ऑफ पावर अगर मैं इंडिया की बात कर लूँ तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जैसा ब्रिटेन में यूज करता है। प्रेसिडेंट जो होता है द फर्स्ट पर्सन, वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। प्राइम मिनिस्टर जो अपने हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट होते हैं। पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बॉडी है, जुडिशरी कोर्ट्स हैं। फेडरल स्ट्रक्चर देखें तो यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल बॉडीज है। ठीक है, 545 मेंबर्स होते हैं, तो राज्यसभा में 250 होते हैं, लॉज बनाते हैं, अमेंड करते हैं, प्रेसिडेंट को रिमूव भी कर सकते हैं, बजट भी अप्रूव करते हैं। एग्जीक्यूटिव की पावर है, प्रेसिडेंट के पास सिर्फ और सिर्फ नाम है, प्राइम मिनिस्टर का सारा काम है। कैबिनेट मिनिस्टर्स पार्लियामेंट के अंदर होते हैं, कॉन्फिडेंस बनाते हैं लोकसभा के अंदर, लॉज इंप्लीमेंट करते हैं, बिल्स लाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को कंडक्ट कराते हैं। जुडिशियल पावर तो यस, योर सुप्रीम कोर्ट इज द हेड ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, चीफ जस्टिस हैं, जजेस हैं, एक सीजीआई है, देन ऑल्सो वी हैव चीफ जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट आते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हम J1 J2 मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट, स्पेशल कोर्ट्स ये सब चलाते रहते हैं, प्रोटेक्ट करनी होती है फंडामेंटल राइट्स की। सारा का सारा जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीजें दे रखी है वो सब लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से
चलना चाहिए। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव पावर आपकी आर्टिकल नंबर 79, 124 में जुडिशियल पावर ऑफ कोर्ट्स दे रखी है, सेपरेशन ऑफ पावर इन आर्टिकल नंबर 50, डिग्री ऑफ सेपरेशन एक पार्शियल सेपरेशन है, एग्जीक्यूटिव डिपेंडेंट ऑन लेजिस्लेचर है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और बैलेंसेस है, कॉपरेशन है, सेपरेशन भी आप लोगों के पास है। चेक्स और बैलेंसेस की बात कर लो तो पार्लियामेंट कैन रिमूव पीएम नो कॉन्फिडेंस मोशन की आपके पास लोग ही नहीं है, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम कैन डिसॉल्व द लोकसभा, जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन एनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वो इशू कर सकती है, रेट एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट सू मोटो एक्शन ले रही है, पार्लियामेंट कैन इंपीच द प्रेसिडेंट और द जजेस, कोई गलत काम कर रहा होगा, प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट बिल्स बट पार्लियामेंट कैन ओवरराइड, ये सारी की सारी चीजें जो हम लोग देखते आ रहे हैं। और आज का काम आप लोगों का यहाँ पे खत्म हो गया, जहां पे अपन ने आर्टिकल नंबर 12 से चीज देखना शुरू करी थी। हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट देख लिए, जहां पे हम एज एन इंडिया की बात करूं तो हम लोग डेमोक्रेसी से देखते हैं, आसपास नेबरिंग कंट्रीज की बात करूं तो कहीं डिक्टेटरशिप भी है, कहीं डेमोक्रेसी भी है, मोनार्की भी चल रही है। उसके आगे अगर मैं बढ़ जाऊं, सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करी, कैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर और जुडिशरी तीनों में सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, पर चेक्स और बैलेंसेस भी आपके पास दे रखे हैं ताकि सब अपना काम ढंग से करें, ट्रांसपेरेंट वे में करें, और भी अगर कोई दिक्कत हो तो एक दूसरे पे आप सवाल जुडिशरी के थ्रू उठा सकते हैं। ठीक है, तो परमानेंट पॉलिटिकल यूनिट विद सुप्रीम अथॉरिटी, गवर्नमेंट की अपन ने बात करी, तीनों के तीनों ऑर्गन की हम लोगों ने बात कर ली, सेपरेशन ऑफ पावर की, चेक्स और बैलेंसेस और डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन, पार्लियामेंट, यूएस ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, यूएस में प्रेसिडेंशियल चलता है और इंडिया में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। ऑल दीज थिंग्स दैट वर इंपॉर्टेंट एज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में लिख देना कि सर क्या इसका क्या, तो मैं वहां पे आपको जवाब दे दूंगा। एंड डोंट फॉरगेट दिस इज योर यूनिट नंबर 115 मार्क्स, इस पूरी की पूरी पीपीटी से आपके कवर हो जाएंगे। समवेयर अराउंड आई हैव 86 पेजेस ऑफ नोट्स, ये 86 पेजेस आप लोगों को मिल जाएंगे और आप नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए ही बनाई है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आई विल कम अगेन विद अनदर वीडियो ऑन अनदर यूनिट, और ऐसे ही सारे के सारे यूनिट स्टेप बाय स्टेप आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। So thank you so much guys, and if you need to know any other thing, अगर आपको कोई टॉपिक इसके अंदर से भी सर इसका क्या मतलब था एक बार वापस से, तो कमेंट में लिख देना, मैं आप लोगों को वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा। So thank you so much guys, don't forget to like it, share it with your other class 11 स्टूडेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन यूनिट नंबर 2 का काम स्टार्ट कर देंगे।